یہ روڈ جس پر میں اس وقت ابھی موجود ہوں اس کا نام شاہراہ لیاقت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں محمد بن قاسم روڈ کس روڈ کا نیا نام ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کراچی کی پہلی فوڈ اسٹریٹ کون سی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ میری آج کی ویڈیو جس روڈ یا علاقے پر بنائی گئی ہے اس کا نام ایک برطانوی جاسوس ڈاکٹر کے نام پر رکھا گیا تھا؟ جی ہاں، ان سب باتوں کا جواب ہے برنس روڈ۔ عامر اسٹرینڈ میں آج آپ برنس روڈ سے متعلق وہ دلچسپ باتیں اور حیرت انگیز حقائق جانیں گے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ کراچی کی وہ سڑک جہاں ایک طرف 150 سال پرانی تاریخ سانس لیتی ہے اور دوسری طرف ایسے ذائقے جو آپ کبھی بھول نہیں سکتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف برنس روڈ کے کھانوں کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ جائیں گے برنس روڈ کی اصل تاریخ، یہاں کون لوگ آ کر آباد ہوئے، یہ فوڈ اسٹریٹ کیسے بنی اور آج اس کی کیا حیثیت ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ برنس روڈ کہاں واقع ہے۔ برنس روڈ کراچی کے قدیم علاقے صدر کے قریب واقع ہے۔ یہ علاقہ پرانے کراچی کے وسط میں آتا ہے اور کئی اہم سڑکیں اور مقامات کے درمیان موجود ہے۔ اس کے قریب یہ اہم سڑکیں اور علاقے موجود ہیں: ایم اے جناح روڈ، شاہراہ لیاقت، شاہراہ کمال اتہ ترک، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، یہ ڈی جے سائنس کالج، این ڈی یونیورسٹی سٹی کیمپس، سول ہاسپٹل کراچی، ایس ایم لاء کالج، کراچی قومی عجائب گھر، آرام باغ جامع کلاتھ مارکیٹ اور کراچی ویمنس کالج کے قریب واقع ہے۔ برنس روڈ اصل میں اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو آج سرکاری طور پر محمد بن قاسم روڈ کہلاتا ہے، لیکن کراچی میں لوگ اب بھی اسے برنس روڈ ہی کہتے ہیں۔ اگر نقشے کے حساب سے سمجھیں تو ایک طرف یہ علاقہ ایم اے جناح روڈ سے جڑتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ صدر اور پرانے شہر کے حصوں کی طرف پھیلتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ تعلیمی اداروں، عدالتوں، اسپتالوں اور تجارتی علاقوں کے درمیان ایک مصروف اور تاریخی مقام بن گیا ہے۔ دوستو، اس علاقے کا نام جس سڑک کی وجہ سے پڑا وہ فریسکو چوک سے روزنامہ جنگ کراچی کے موجودہ دفتر تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کی فوڈ اسٹریٹ فریئر روڈ یعنی موجودہ شاہراہ لیاقت کے ساتھ واقع ہے۔ تاہم یہ فوڈ اسٹریٹ برنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے۔ علاقے کے لوگوں کے مطابق دراصل یہ علاقہ شاہراہ لیاقت کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اس کا ایک سرا اردو بازار اور بہادر شاہ مارکیٹ سے جامع کلاتھ کے کونے تک اور دوسرا سرا سندھ سیکریٹریٹ کے عقبی حصے سے فریسکو چوک تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پورا برنس روڈ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں برنس روڈ کی تاریخ کی۔ عامر اسٹرینڈ میں آپ کو لے جا رہے ہیں 1860 کے دور میں، جب کراچی ابھی ایک چھوٹا مگر تیزی سے بڑھتا ہوا بندرگاہی شہر تھا۔ تب برطانوی حکومت نے یہاں باقاعدہ پلاننگ کے تحت آبادیاں بنائیں۔ ان آبادیوں کو کوارٹرز کہا جاتا تھا اور برنس روڈ کا علاقہ بھی انہی کوارٹرز میں شامل تھا۔ یہاں مختلف معاشرے کے لوگ آ کر آباد ہوئے: کچھی، گجراتی، میمن اور دیگر کمیونٹیز، جس کی وجہ سے برنس روڈ کا پورا علاقہ ایک کلچرل مکس بن گیا۔ برنس روڈ کا علاقہ اصل میں پرانے کراچی کے ان حصوں میں شامل تھا جو انگریز دور میں 19ویں صدی کے وسط میں آباد ہونا شروع ہوئے۔ اس کے اطراف کے علاقے 1857 کے بعد
तेज़ी से तरक्की करने लगे। यहाँ कारोबारी लोग, सरकारी मुलाजमीन और मुख्तलिफ बरादरियाँ आकर बसने लगीं। क़याम पाकिस्तान से पहले भी ये इलाक़ा अहम था, लेकिन असल तब्दीली 1947 के बाद आई, जब हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आकर आबाद हुए। ये लोग अपने साथ सिर्फ ज़बान और सक़ाफ़त नहीं लाए, बल्कि निहारी, कबाब, रबड़ी, हलीम, बन कबाब, दही बड़े, लस्सी, चाट जैसे खानों की रिवायात भी साथ लाए। यही चीज़ आगे चलकर बंस रोड की शनाख्त बनी। दोस्तों, अब आपको इंतहाई हैरत अंगेज़ और दिलचस्प इंकिशाफ बताते हैं। 27 अगस्त 2014 को इंग्लिश रोज़नामा डॉन में एक मज़मून शाया हुआ, जिसके मुताबिक बंस रोड का नाम एक बरतानवी जासूस डॉक्टर के नाम पर रखा गया था। आगे तफसीलात बताई जाती हैं, जिसमें कराची में बंस रोड का नाम जेम्स ब्रंस के नाम पर रखा गया है, जो कि 18वीं सदी में बर्रे सग़ीर में बरतानवी राज के लिए जासूस के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर थे। वो बरतानवी दौर में सिंध आए थे, क्योंकि वो सियासी और इंतज़ामी मालूमात भी जमा करते थे। इसलिए बरतानवी दौर में उनकी खिदमात के पेश नज़र इस रोड का नाम बर्न्स रोड कर दिया गया, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद ये नाम बदल कर मोहम्मद बिन कासिम रोड रख दिया गया। और दोस्तों, अब आपको एक और दिलचस्प हकीकत बताते हैं कि बंस रोड कराची की पहली फूड स्ट्रीट किस तरह से बनी। पाकिस्तान बनने के बाद सरकारी दफातर इसी इलाके के करीब बने हुए थे, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की बैरिकें मौजूद थीं। थोड़ी बहुत तब्दीली के बाद इन्हें कमरों या बैठने और मेज़ कुर्सियाँ रखने की जगह में तब्दील कर लिया गया। कम तनख्वाहों का ज़माना था, इतनी फुर्सत नहीं थी कि सरकारी मुलाजमीन घरों को जाते और दोपहर का खाना खाकर दफ्तर लौट आते। उन सरकारी मुलाजमीन में बहुत से लोग हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे और उन्होंने इसी बंस रोड को अपना मरकज़ बना लिया। धीरे धीरे ढाबों और होटलों की तादाद बढ़ती चली गई। सरकारी मुलाजमों के लिए आसानी पैदा हो गई, यानी दोपहर में दफ्तरों से निकले और चंद कदम चलकर बंस रोड पर अपनी मर्ज़ी के ढाबे पर पहुंच गए और खाना खा लिया और फिर दफ्तर में दोबारा जा बैठे। जब दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया तो बंस रोड के ढाबों की रौनकें कुछ कम पड़ गईं, लेकिन यहाँ जो लोग खानों के ढाबे और कारोबार करते थे, इन्होंने हिम्मत से काम करते हुए अपने इस कारोबार को बंद नहीं होने दिया और आज यही बंस रोड की एक मशहूर व मारूफ फूड स्ट्रीट में बदल चुका है। और यहाँ की फूड स्ट्रीट की शोहरत की एक ख़ास वजह यहाँ के खाने थे, जो कि निस्बतन सस्ते, मक़दार में ज़्यादा और जायके में असल होते थे। इसी वजह से मज़दूर से लेकर ताजिर, तालिब इल्म, सियासतदान और फ़िल्मी शख्सियात तक यहाँ आने लगे। यहाँ कई दुकानें दूसरी और तीसरी नस्ल तक पहुँच गईं। मिसाल के तौर पर वहीद कबाब हाउस, दिल्ली रबड़ी हाउस, फ्रेस्को स्वीट्स, फूड सेंटर, सुपर शाहीन शनवारी, कराची दिल्ली गोला कबाब हाउस, तवक्कल बिरयानी, दिलशाद कुल्फ़ी और बहुत से मशहूर नाम काबिल ज़िक्र हैं। और दोस्तों, बात करते हैं कि बंस रोड की असल शोहरत
कब बढ़ना शुरू हुई। 1960 और 1980 के दरमियान ये इलाका कराची के सबसे मशहूर खाने के मरकज़ में बदल चुका था। फिर बाद में टीवी प्रोग्राम्स, अखबारी मज़ामीन, यूट्यूबर्स और बैनुल-अक़वामी फूड व्लॉगर्स यहाँ पर आने लगे, जिसकी वजह से ये इलाका शोहरत का हामिल बन चुका। यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। 2008 की सीरीज़ बंस रोड की नीलोफर यहीं बनाई गई थी। इस गली या महल्ले का नाम 2024 की पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ बंस रोड के रोमियो और जूलियट में भी इस्तेमाल किया गया है। इस सीरीज़ की फिल्मबंदी इसी मुकाम पर हुई है। बाद में कराची इंतज़ामिया ने यहाँ की इमारतों की रंगो रोगन, रोशनियों, पैदल रास्तों और शाम के बाद ट्रैफिक बंद करने जैसे इक़दामात किए ताकि उसे बाकायदा फूड स्ट्रीट की शक्ल दी जा सके। अब रात के वक्त ये इलाका गाड़ियों के बजाय पैदल चलने वालों के लिए ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, आप लोगों की दिलचस्पी के लिए ये वीडियोज़ जो बनाई जाती हैं उसमें बड़ी मेहनत और वक्त लगता है, और उसके बाद फिर एक क्वालिटी वीडियो आपके सामने आती है जिसमें दिलचस्पी और मालूमात दोनों मौजूद होती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है। बंस रोड सिर्फ खाने तक महदूद नहीं, इसके आसपास भी तारीख़ बिखरी हुई है। यहाँ करीब ही मौजूद है डीजे साइंस कॉलेज, जहाँ से कई बड़े नाम निकले। इसके साथ साथ एनईडी यूनिवर्सिटी का पुराना कैंपस, जो कराची की इंजीनियरिंग तारीख़ का एक अहम हिस्सा है, और कराची की सबसे बड़ी एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का यहीं से इब्तिदा भी हुआ। फ्रेस्को चौक एक तारीख़ी इंटरसेक्शन जहाँ से शहर की कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। सिविल अस्पताल जहाँ लाखों लोगों का इलाज होता है, और आज भी ये शहर की बड़ी मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कर रहा है। और यहाँ गर्ल्स कॉलेज भी मौजूद है जो तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा SM लॉ कॉलेज, जहाँ से कई बड़े मशहूर कानून दान फ़ारिग़ुत तहसील हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम अजायब घर भी यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आमिर स्ट्रैंड मेरे चैनल का नाम है। मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की अगली दिलचस्प वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है, आपका बहुत शुक्रिया।